So let us discuss about the first connective tissue, that is fluid connective tissue. I told you in my previous lecture that connective tissue is classified into five. The first one is loose areola, second is dense areola, third is adipose tissue, fourth is skeletal, and fifth one is fluid. So in the NCERT book, the first connective tissue which is being explained here is your fluid connective tissue. And in fluid connective tissue, further divided into cardiovascular fluid and lymphatic fluid. Clear, students? So fluid connective tissue is divided into two parts. One is cardiovascular tissue and fluid, and the second one is lymphatic fluid. Clear? In cardiovascular fluid, blood will come, and in lymphatic fluid, lymph will come. Clear? So let us discuss about the cardiovascular fluid, that is blood. So you can see here, blood has a fluid like matrix called plasma, right? Blood has fluid like matrix which is known as plasma, and in which RBC, WBC and platelets are suspended. So you can see blood is been classified into two portions. One is plasma and the second one is blood cells. Clear? So blood is classified into two portions. One is plasma, the second is blood cells. So plasma, you can see here has been written here, plasma contain protein, salts and hormones. So plasma is the liquid part of the blood which contain various proteins, salts and hormones. Clear? So blood is classified into two. One is plasma, other the blood cell. Plasma is a liquid part of the blood which contain various proteins, salts, hormone, food, gases, etc. Clear? Next is the blood cells. In blood cell, it is being classified into three classes. One is RBC, second is WBC, and the third one is platelets. RBC, you very well know, red blood cells. They carry different gases like oxygen and RBC, right? समझ गए? RBC red क्यों होते हैं? Because they contain a respiratory pigment called hemoglobin, which binds to the oxygen and carry to the different parts of the body. Clear? Next is WBC, white blood cells. White blood cells, they contain different classes of WBC cells, which has been further classified into granulocyte and agranulocytes. लाइक आप इस पिक्चर में देखिए नीचे बिल्कुल लास्ट वाली जो पिक्चर दे रखी है, दिस वन, डिफरेंट white blood corpuscles have been given here. So the corpuscle is nothing but the cells, right? So WBC जो है फर्दर हम ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट में डिवाइड करते हैं. ग्रैनुलोसाइट में तीन सेल आते हैं जो आप यहाँ पर देखिए ऊपर, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल. क्लियर? ग्रैनुलोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर होते हैं ग्रैन्यूल्स. ठीक है? WBC सेल जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स. सो उसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इस्नोफिल. क्लियर? नीचे आप ये देख रहे हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, राइट? ये आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट. इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते. क्लियर? समझ में आया बेटा? सो WBC सेल फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट. ग्रैनुलोसाइट में आते हैं न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, एंड ए ग्रैनुलोसाइट में आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. So what is the function of WBC cell? They protect our body from infection. Clear? They are the soldiers of our body. जैसे आपने देखा है कि हमारे देश की सीमा पर सोल्जर्स खड़े होते हैं जो हमें आतंकवादियों से बचाते हैं. द सेम वे दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम जर्म्स एंड infection. Clear? So the third category is the platelets. Clear? अब ये जो platelets हैं, they actually they help during injury, right? So हमें कभी भी चोट लगती है तो जो हीलिंग का काम होता है वो सबसे पहले जो सेल्स करते हैं ब्लड लॉस को रोकने के लिए, वो होते हैं प्लेटलेट्स. सो यू कैन से दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. क्लियर? अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो आपकी बॉडी से जो ब्लड है वो लॉस हो जाएगा. क्लियर? चोट लगने के बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दी प्लेटलेट्स, बिकॉज ये एक नेटवर्क, एक मैश फॉर्म कर लेते हैं जो आपकी बॉडी से ब्लड को बाहर नहीं आने देता. एंड दिस इज ओनली फॉर द
जो छोटी इंजरीज होती हैं बॉडी में, थोड़ा सा कट हो गया, जो मेजर इंजरीज होती हैं उसके अंदर ये प्रोसेस इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं होगा, तो इन दैट केस हमें डॉक्टर्स का हेल्प लेना पड़ता है. क्लियर? ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द cardiovascular fluid. Next is the lymph, right? I told you lymphatic fluid, the lymph is nothing but a colorless fluid जिसके अंदर RBC नहीं होते, platelets नहीं होते. It contain only WBC cell. It flow in the lymphatic system in our body, and this fluid lymph particular इसका जो function है वो है प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से. क्लियर हो गया? सो ब्लड, cardiovascular fluid, and lymph is the lymphatic fluid. Clear? Okay, the next is bone. So अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू में वो था स्केलेटल. क्लियर? सो स्केलेटल के अंदर फर्दर स्केलेटल जो कनेक्टिव टिश्यू है, द सेकेंड कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. वन इज कार्टिलेज एंड द अदर इज बोन. अब स्केलेटल जो सिस्टम है कनेक्टिव टिश्यू का, ये आपको पता है कि हमारा एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है बॉडी में, राइट? द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप्स टू द बॉडी एंड इट फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ आवर बॉडी. सो इट गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू कार्टिलेज एंड दी बोन. सो आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कार्टिलेज के बारे में. कार्टिलेज जो है इसके अंदर मैट्रिक्स जो होती है वो लेस हार्ड होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली कैल्शियम सॉल्ट्स. क्लियर? कार्टिलेज हैज़ मैट्रिक्स विच इज़ लेस हार्डन, कंटेन ओनली कैल्शियम सॉल्ट. और इस कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. यू कैन सी हेयर. ठीक है? सो द कार्टिलेज कंटेन सेल्स नेमली कॉन्ड्रोसाइट्स. और इसके अंदर कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं. यहाँ पे इलास्टिन फाइबर नहीं होते. ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ लेस हार्डन, कंटेन ओनली कैल्शियम सॉल्ट. सेकेंड थिंग, इट कंटेन सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट. थर्ड, इट कंटेन कोलेजन फाइबर्स. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है हाइलिन मैट्रिक्स. तो हाइलिन जो कार्टिलेज है वो हमारी सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज होती है बॉडी के अंदर. ठीक है? ये किसी भी बोन के एंड में पाई जाती है. हमारे लैरिक्स में दैट इज़ वॉइस बॉक्स में पाई जाती है. ट्रैकिया में दैट इज़ विंड पाइप में पाई जाती है. ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है कार्टिलेज का. सो ये सॉफ्ट होती हैं. ये जनरली हमारे ईयर में आप देखोगे कि ईयर को आप बेंड करते हो बाहर से तो वो इजीली बेंड हो जाता है, राइट? नोज़ की जो टिप है वो इजीली बेंड हो जाती है. सो दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. क्लियर बेटा? ओके, द नेक्स्ट वन इज बोन. कंपैरेटिवली कार्टिलेज से बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. क्लियर? इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल. बोन को आप कहीं से भी नहीं मोड़ सकते हो, राइट? दो बोन अगर आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो जॉइंट्स होते हैं. क्लियर? सो इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैंने कार्टिलेज की मैट्रिक्स में बताया था कि सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं एंड कोलेजन फाइबर. बट हेयर अलॉन्ग विद द कैल्शियम सॉल्ट मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं एंड सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, आप बोन का डायग्राम दे रखा है. क्लियर? यहाँ पे देखोगे आप सर्कल सर्कल दिखा रखे हैं, फिर बीच में एक ब्लू कलर के जो डॉट्स दिखा रखे हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस डायग्राम. क्लियर? सो यू कैन सी ये जो बीच में आपको ब्लू कलर के जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में, ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल. क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल. इस कैनाल के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ठीक है? इस कैनाल के अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल एंड नर्व्स. क्लियर? अब इसके बाहर अगर आप देखेंगे, ये जो सर्कल दिखा रखे हैं, इन सर्कल्स को हम बोलते हैं लैमिले. क्या बोलते हैं? लैमिले. इन लैमिले के अंदर बीचों बीच लैक्यूने, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे ऑस्टियोसाइट्स होते हैं. ऑस्टियोसाइट्स यानी बोन सेल्स. जैसे हमने कार्टिलेज में पढ़ा था कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि सेल्स होते हैं कार्टिलेज में, इसी तरह बोन के अंदर सेल होते हैं ऑस्टियोसाइट. क्लियर? सो यू कैन सी बीच में जो सेंटर ब्लू कलर का दे रखा है वो है सेंट्रल कैनाल, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो ब्लड तक बोन तक सप्लाई पहुंचाती हैं, राइट? उसके बाहर ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं लैमिले. इन लैमिलेज के अंदर एक रेगुलर इंटरवल पे होते हैं लैक्यूने जिनको हम बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इन्हीं के अंदर होते हैं हमारे ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स यानी बोन सेल. क्लियर? समझ में आया बेटा? एंड बोन जनरली इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग शेप टू आवर बॉडी एंड इट गिव स्केलेटल सपोर्ट. क्लियर?
So we have discussed about the number 2 connective tissue, that is bone and cartilage. So come here on the NCERT. Bone is another example of connective tissue. It forms the framework that support the body. It also anchor the muscle and support the main organ of the body. It is a strong non-flexible tissue. What would be advantage of these properties for bone function? Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium phosphorus compound. So this is already explained to you, राइट. सो बोन की जो हार्ड मैट्रिक्स होती है वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की वजह से होती है. एंड सर्टेन प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं जो कि कार्टिलेज में मिसिंग होते हैं. यहाँ पे आपको कार्टिलेज के सिर्फ डायग्राम दे रखा है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. सो होप यू हैव enjoyed my lecture today. So next class we will discuss about the various you can say कि different adipose tissue and dense areolar tissue and loose areolar tissue. So hope you have enjoyed my class. So take care, stay home, stay safe.